Afternoon, all the students present here. Today I am going to take your class on the topic natural resources and its management. Okay. So प्राकृतिक संसाधन क्या है, उसका मैनेजमेंट कैसे होता है. Okay. So this is your unit 3rd of your syllabus. So natural resources क्या है? What are the natural resources present on our biosphere? Some natural resources are listed here: forest resources, water resources, mineral resources, energy resources, land resources. These 5 resources are very important and we are going to talk about this. Okay, so you can see here the content कि what are the natural resources available on the earth. ठीक है, पहले मैं आप लोगों को रिसोर्सेज के बारे में बताऊंगा कि फॉरेस्ट रिसोर्स क्या है, वाटर रिसोर्स क्या है, मिनरल रिसोर्स क्या है, एनर्जी रिसोर्स क्या है, लैंड रिसोर्स क्या है, जो आपका मेन रिसोर्स है. फिर बताऊंगा कि हाउ टू कंजर्व दैट. Okay, how we can conserve all these resources in our own way. Okay, so first, natural resources include air, water, forest, animal, fishes, marine. Everything which is present around us is called as natural resources. Okay. Natural resources को हम two parts में divide कर सकते हैं. One is renewable, another is non-renewable. So first, what are the natural resources? Everything present around us which are exist naturally is called as natural resources, and which we are using in our daily purposes. Okay, so second, renewable and non-renewable resources. यहाँ पे ये भी ध्यान रखना कि what is the difference in between renewable and non-renewable resources. Okay, renewable means the resource which can be regenerated in a short span of time is called as a renewable resource. You can see here renewable energy is energy which is generated from natural resources such as sun, wind, rain, tides, and can be generated again and again as and when required. Okay. Important point is as and when required. Okay, in a short span of time it can be regenerated. If you are writing, please note down, in a short span of time, the renewable resources can be regenerated. Okay. Second, they are available in plenty, and by far most of the cleanest source of energy available on the planet. Okay. Cleanest source, why? They exist naturally, they can be regenerated naturally. So these are the cleanest source of the energy are natural resources. Okay. For example, some examples are solar energy, wind energy, geothermal, biomass, tidal energy, etc. etc. Okay, if we talk about the hydro energy, इसमें क्या होता है, टर्बाइन्स पे वाटर को गिराया जाता है and due to the rotation of the turbine, the electricity is generated. ठीक है, उसको हम ट्रांसफार्मर्स या वहाँ पे कैपेसिटी जो भी लगे होते हैं, मशीनरी लगी होती है, उसमें हम कैप्चर करते हैं, फिर वो डिस्ट्रीब्यूट होती है फॉर अवर होम या किसी भी पर्टिकुलर इंडस्ट्री में. तो हाइड्रो पावर से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन बाय द हाइड्रो पावर. ठीक है, इसके बाद हम विंड की बात करें, विंड मिल लगी हुई है, उसका टरबाइन रोटेट कर रहा है विंड का, और जो टरबाइन रोटेट करता है विंड का, उससे जो एनर्जी जनरेट होती है, जो टरबाइन रोटेट करता है उससे जो एनर्जी जनरेट होती है, वो हमारी कौन सा रिसोर्सेज है, विंड एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन बाय द विंड एनर्जी. ठीक है, बहुत सारे इंडिया में और फॉरेन कंट्रीज में, in most of the cases in the developed countries, they are using a lot of renewable resources for our daily purposes. Okay, if you talk about the solar energy, you know the biggest source of energy on the earth is sun. सबसे बड़ा जो सोर्स है वो हमारा सन है. प्लांट्स क्या करते हैं, जो भी सोलर रेडिएशंस होती है उनको एब्जॉर्ब करते हैं. ठीक है, एंड ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस दे मेक फूड. ठीक है, और वो फूड हम खाते हैं, चाहे हम फॉरेस्ट एरिया की बात करें या हम एग्रीकल्चर लैंड की बात करें, एनी काइंड ऑफ लैंड. ओके, सेम थिंग इज रिलेटेड विद द टाइड, विंड एंड जियोथर्मल एनर्जी. ठीक है, बायो एनर्जी की अगर हम बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल
in the current scenario, we are using fossil fuel in our vehicles. But अभी ये कॉन्सेप्ट आ गया कि एक टाइम पे फॉसिल फ्यूल खत्म हो जाएगा क्योंकि वो रिन्यू नहीं हो सकता है. फॉसिल फ्यूल मींस पेट्रोल डीजल कोल. These kind of resources cannot be renewed, और अगर रिन्यू होते भी हैं तो a long span of time is required for the renew of that kind of particular resources. That's why they are called as a non-renewable resources. मैं fossil fuel की बात कर रहा हूँ. So bioenergy is the concept of alternative source of energy which is replacing our non-renewable resources such as fossil fuel. ठीक है, उसकी जगह हम इथेनॉल का यूज कर रहे हैं. किसका कर रहे हैं? जेट्रोफा का, बायोडीजल का यूज कर रहे हैं. बायोडीजल यू नो, प्लांट लगता है 10 इयर्स में कंप्लीट हो जाता है, फिर उसके हम सीड से जो डीजल निकलता है, जो ऑयल बेरिंग कैपेसिटी ऑयल निकलता है, उसको हम एज ए बायोडीजल यूज करते हैं. जेट्रोफा की आई थिंक यू आर मच अवेयर अबाउट. जेट्रोफा इज ए बायोफ्यूल प्लांट. ठीक है, अब हम रिन्यूएबल के बाद नॉन रिन्यूएबल पे चलते हैं. नॉन रिन्यूएबल देखो क्या क्या है. Sorry, as I told you earlier, non-renewable resources, the biggest example is the fossil fuel. You can see here coal is also there, oil, gas, nuclear. These are all non-renewable resources which can be generated only once, or very long span of time is required for the regeneration of these kind of resources. You can see here in writing, a non-renewable resource is a natural resource that cannot be remade or regrown at a scale comparable to its consumption. Okay. Some examples are fossil fuel, natural gas, oil, and coal. Non-renewable resources are not environmental friendly and can have serious effects on the health. As you have seen, and you are facing that kind of problem. अभी देखो क्या हो रहा है दिल्ली में. Even out का concept क्यों चला? Because fossil fuels are used in our vehicles for our daily purpose. और वो क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, NO, कार्बन मोनोऑक्साइड, so many kind of gases are. ठीक है, बहुत सारी ऐसे गैसेस होती हैं जो बाहर निकलती हैं और जो एनवायरनमेंट में जाके रिएक्शन करके सेकेंडरी कंपाउंड बनाती है. एंड देन काइंड ऑफ सेकेंडरी कंपाउंड इज हार्मफुल एंड प्रोड्यूस एसिड रेन होता है, ग्लोबल वार्मिंग होता है, कार्बन डाइऑक्साइड यूज एक्ट एज अ सिंक फॉर द हीट. ओके, सो इट प्रोड्यूस क्या करता है? क्लाइमेट चेंज को बढ़ावा देता है. ठीक है, सो this is about the non-renewable resources. So basic difference in between renewable and non-renewable is that renewable resource can be renewed and non-renewable cannot be renewed. Okay, an example से आपको समझाना है अगर आपको आता है तो. ठीक है, okay. So first I am talking about the forest resources. ठीक है, as you know, forest is the biggest natural resource in all over the world, and typically scientists estimate that India should ideally have 33% of its land under forest. Today we have only about 12%. Thus we need not only to protect existing forest but also to increase our forest cover. ठीक है, डिफॉरेस्टेशन एक्टिविटी बहुत ज्यादा बढ़ गई हमारे यहाँ ड्यू टू जो मेन फैक्टर है वो है हमारा the main factor is population explosion. Our population is increasing day by day. That's why our need is also increasing day by day. Okay, to fulfill our needs and for our daily जो हमारा नीड होता है उसको फुलफिल करने के लिए we are basically depend on the forest area. फॉरेस्ट में क्या, हम जिस टेबल चेयर पे बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं, अभी भी बात कर रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं फॉरेस्ट से बना हुआ है. we are whole, हम अगर चारों तरफ देखें, we are all surrounded by the natural resources. कुछ भी हो, ब्रिक्स कहाँ से मिलती हैं? ब्रिक्स जिस घर में हम रहते हैं, ब्रिक्स मेड अप ऑफ द सॉइल. सॉइल इज आल्सो नेचुरल रिसोर्स. ठीक है, सॉइल को ब्रिक्स बना के फिर हमने घर बनाया. ओके, जैसे ये यूजेज ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज. ठीक है, यू नो आप पहले से भी पढ़ते आए हो कि कॉजेज ऑफ रेनफॉल होता है, द इंक्रीज द मॉइस्चर कंटेंट. जहाँ पे होगा वहाँ पे जो उसका रूट होता है फॉरेस्ट का या प्लांट का, ट्री का, उसमें सॉइल बियरिंग कैपेसिटी, सॉइल बाइंडिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है. दैट्स व्हाई वहाँ पे रेनफॉल होता भी है तो फ्लड की प्रॉब्लम नहीं आती है. ठीक है, फ्लड की प्रॉब्लम नहीं आती है. मॉइस्चर कंटेंट को इम्प्रूव करता है और वहाँ पे पानी ज्यादा से ज्यादा रहता है, मतलब मॉइस्चर कंटेंट ज्यादा से ज्यादा रहता है. ठीक है,
or prevent soil erosion. It also prevents soil erosion by checking the force of the flowing of the water. The thick roots of the trees absorb large quantity of water, thus forests help in the flow of river and streams. Okay, so then some another usage of forest resources: shelter to wild animals and birds. No need to explain, you are much aware. Improve the sanitary conditions, sources of revenue, facilitate human existence by providing oxygen to human beings and absorbing carbon dioxide by human beings. Okay, forests are consuming carbon dioxide and producing continuously oxygen. Okay. They provide employment large number of people in different capacity of wood cutters, carriers, etc. Okay. They also provide herbal medicine. Forest resources are also used as a herbal medicine and frequently used as a medicine in so many medical treatment. Okay, so reason for large scale depletion of forest. What is the reason behind the forest depletion? The basic reason is expansion of agriculture. Because our population is increasing, so our need is increasing. To fulfill our needs, we are expanding the agricultural land to fulfill our fooding purpose. Okay, so more forests have been cleared for the agriculture, for the expansion. Large area of forest land have been cleared for urbanization and human settlement. ठीक है, हमारा पॉपुलेशन बढ़ गया रहेगा कारण, तो हमको कहीं ना कहीं अर्बनाइजेशन को बढ़ावा देना पड़ेगा. ठीक है, घर बनाना पड़ेगा ज्यादा से ज्यादा. Commercial exploitation of forest fires. As you know, in the summer season every year forest fire होता ही होता है hilly areas में. ठीक है, mining activities in the forest area. Mining activity हम करते हैं because you know there is a recent example of the Buxoha forest in the MP area, मध्य प्रदेश area. उधर पे कुछ शायद डायमंड का या कुछ ऐसा मिला था, इंपॉर्टेंट ओर्स मिला था, तो उन्होंने पूरे जंगल को काटने का गवर्नमेंट ने आदेश दे दिया था. तो उसमें बहुत सारा एक्टिविस्ट और एनजीओ ने उस पर स्टैंड लिया था. ठीक है, वो न्यूज में भी बहुत एक हॉट टॉपिक की तरह चल रहा था. ठीक है, ओके, हम उसमें ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे. तो ये सब रीजन है फॉरेस्ट एरिया के डिप्लीट होने के. फिर एडवर्स इफेक्ट ऑफ डिप्लीशन ऑफ ट्रीज. सबसे biggest example and biggest effect is climate change. How? Forest कट गया, कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज हो गया, and the increase of carbon dioxide accelerate the heating of the earth. The earth's surface gets heated up, and this kind of phenomena is called as global warming. When the earth's surface gets heated, then the melting of glaciers occurs, and the melting of glaciers accelerates, increase. क्या करेगा वो? Inundation of the land with the water. पानी के लेवल को बढ़ा देगा. जब ग्लेशियर पिघलेगा तो पानी इसी में जाएगा, तो क्या होगा? फ्लड. It causes flood in the coastal areas. ठीक है, so these are interconnected with each other, and this leads to climate change of the Earth's atmosphere. Okay? Increased rate of soil erosion, rise in temperature, loss of soil productivity, loss of biodiversity, extinction of several species of plant and animals. जैसे आप देखते हो आर्कटिक अंटार्कटिक में क्या हो रहा है वहां पे सॉरी वहां पे क्या हो रहा है कि वहां पे अभी मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स हो रहा है. तो जो पेंगुइन्स हैं वो कहाँ जाएं बेचारे, कहाँ जाएंगी? तो उनका एक्सटिंक्शन होता जा रहा है. ठीक है, तो ये सब आप लोग डिस्कवरी एंड ऑल पे देखते रहते होंगे. इम्बैलेंस इन इकोसिस्टम. ठीक है, देन दिस इज ऑल अबाउट द फॉरेस्ट रिसोर्सेज. व्हाट इज एफॉरेस्टेशन, व्हाट इज डिप्लीशन ऑफ द ट्रीज, और कंजर्वेशन कैसे कर सकते हैं, हाउ वी कैन कंजर्व द फॉरेस्ट. ओके, गवर्नमेंट इज making so many rules and regulations every year and amending rules for the conservation of the forest. Okay, so some of the control over forest fires. जैसे फॉरेस्ट फायर पे कैसे कंट्रोल करना है, गवर्नमेंट ने बहुत सारे इनिशिएटिव लिया है. रिफॉरेस्टेशन करना है, प्लांटिंग ऑफ ट्रीज. रिफॉरेस्टेशन मींस प्लांटिंग ऑफ फॉरेस्ट. ओके, फिर चेक ऑन फॉरेस्ट क्लियरेंस फॉर एग्रीकल्चर, ह्यूमन हैबिटेशन एंड सेटलमेंट. ठीक है, ह्यूमन अर्बनाइजेशन को रोकना है, कंट्रोल इन अर्बनाइजेशन, एंड जो एग्रीकल्चर लैंड के लिए सॉइल को क्लियर कर दिया जाता है उसको भी रोकना है. ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ ग्रीन बेल्ट्स अराउंड सिटीज. हर एक सिटी के चारों तरफ ग्रीन बेल्ट को बनाना है. माइनिंग एक्टिविटीज को रोकना है, जैसे मैंने अभी पहले बताया आपको. प्रोटेक्शन ऑफ एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट. जो एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट है, जैसे दिल्ली में अभी बहुत सा एरिया ऐसा है जो कि फॉरेस्ट एरिया है.
ठीक है। वहां पे कोई भी एक्टिविटी नहीं हो सकती है। कंजर्वेशन ऑफ थ्रेटेंड स्पीसीज ऑफ द ट्री, ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, और क्या हो सकता है, एग्रो फॉरेस्ट्री। व्हेन द प्लांट्स आर ग्रोन इनटू द एग्रीकल्चरल लैंड इज कॉल्ड एज एग्रो फॉरेस्ट्री, मतलब एग्रीकल्चर भी वहां हो रहा है, वहां पे फॉरेस्ट एरिया भी लगा है, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ नेशनल पार्क्स एंड सेंचुरीज, यू नो देयर आर मेनी नेशनल पार्क्स एंड सेंचुरीज in India and also all over the world. These are the protected areas where no, where any kind of construction or any kind of external activity is not allowed. There is proper rules and regulations. Okay, उन रूल रेगुलेशन को फॉलो करके ही वहाँ पे जाया जा सकता है या कोई एक्टिविटी की जा सकती है। डेवलपमेंट ऑफ बोटेनिकल गार्डन, जैसे यू नो इन दिल्ली देयर इज अ बोटेनिकल गार्डन, यू कैन विजिट देयर एंड सी हाउ द गार्डन इज मेड, ओके, एंड हाउ मेनी प्लांट्स आर देयर एंड सो मेनी वेराइटीज आर kept there, okay, and conservation programs are already good, increasing. Development of seed banks, okay, seed bank, the concept of seed bank is कैसे हम सीड्स को सीड बैंक में रखें। बहुत से सीड बैंक में बहुत से प्लांट स्पीसीज ऐसे हैं जो कि डिप्लीट होते जा रहे हैं कॉन्टिन्यूसली, तो उनके सीड्स को हमको रखना है, और जब उसके पर्टिकुलरली उसका फेवरेबल कंडीशन आएगा तो उस सीड से हम फिर से उस प्लांट को उगा सकते हैं, ठीक है। देन फॉरेस्ट मैनेजमेंट, प्रॉपर रोल ऑफ गवर्नमेंट इन फॉरेस्ट कंजर्वेशन, ये हो गया हमारा कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट का कॉन्सेप्ट, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा डिफॉरेस्टेशन। क्या है, सिंपल सा वर्ड है, कटिंग ऑफ ट्रीज इज डिफॉरेस्टेशन, ठीक है, कटिंग ऑफ ट्री, पेड़ों को काटना ही डिफॉरेस्टेशन है। डिफॉरेस्टेशन मीन्स large scale felling or cutting of trees. Deforestation means large scale felling or cutting of trees, ठीक है, by man for commercial and other purposes. Naturally नहीं, man के थ्रू जो किया गया, that is called as a deforestation. What are the causes of deforestation? Desertification, you know, the desert formation. फॉरेस्ट एरिया जहाँ नहीं होगा वहाँ पे डेजर्ट हो जाएगा। इन इंडिया थार डेजर्ट, जो हमारा वो है राजस्थान का डेजर्ट है। सॉइल डिग्रेडेशन एंड सॉइल इरोजन, डिफॉरेस्टेशन हो गया, प्लांट कट गया तो सॉइल इरोजन बढ़ जाएगा। लॉस ऑफ वेजिटेशन कवर एक है, तीसरा, चौथा डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचुरल हैबिटेट एंड लॉस ऑफ वाइल्ड लाइफ है, पांचवा चेंज इन क्लाइमेटिक कंडीशन। मैंने अभी पहले भी बताया कि हाउ क्लाइमेटिक कंडीशंस एक्सेलरेट द ग्लोबल वार्मिंग, एसिड रेन या फिर पेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स etc, ठीक है। इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, प्लांट नहीं रहेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड कम से कम एब्जॉर्ब होगा, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ गया तो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाएगी, ठीक है। इससे क्या होगा कि बहुत सारे जो पॉल्यूटेंट्स हैं एनवायरमेंट में ऑलरेडी, उनको हीट मिलने से वो रिएक्ट बहुत अच्छे से कर लेते हैं, एसिड रेन का फॉर्मेशन हो जाएगा, तो पूरा जो हमारा एनवायरमेंट है वो डैमेज हो जाएगा, डैमेज टू द इकोसिस्टम, इट कॉजेस डैमेज टू द इकोसिस्टम, ओके। रिडक्शन इन सॉइल मॉइस्चर इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। देन कंट्रोल ऑफ डिफॉरेस्टेशन, हाउ वी कैन कंट्रोल द डिफॉरेस्टेशन, ओके। ये था कॉजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन। अब कैसे हम इसको कंट्रोल करेंगे? पहला है ह्यूमन सेटलमेंट इन द फॉरेस्ट एरिया। फॉरेस्ट एरिया में ह्यूमन सेटलमेंट को रोक देना है। इंडिया में बहुत सारी ऐसी जगह हैं, प्रोटेक्टेड एरियाज हैं, जहाँ पे जो लोकल ट्राइब्स है उसके अलावा वहाँ पे कोई भी सेटल नहीं हो सकता है, कोई जा भी नहीं सकता है। चेक ऑन एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर इनटू फॉरेस्ट लैंड, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर चेक ऑन रेकलेस कटिंग ऑफ ट्रीज, कंट्रोल्ड माइनिंग इन द फॉरेस्ट एरिया, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था अभी पहले, कंट्रोल्ड माइनिंग करनी है, पूरे फॉरेस्ट एरिया माइनिंग नहीं करनी है। चेक ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ लार्ज डैम इन द फॉरेस्ट एरिया, ठीक है। कंट्रोल ऑन ओवर ग्रेजिंग इन फॉरेस्ट एरिया, ठीक है, ओवर ग्रेजिंग यहाँ पे हो रही है उस फॉरेस्ट एरिया में हमको कंट्रोल करना है कि कम से कम ओवर ग्रेजिंग हो, ठीक है। पर्टिकुलरली क्या होता है कि जब हम अपने जैसे गाय को अगर किसी फार्मर ने छोड़ दिया तो पर्टिकुलरली एरिया में ग्रेजिंग करती है, तो हमको उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है कि इस एरिया में, फिर उस एरिया में, उस एरिया में। इससे क्या होगा कि हमारा जो लैंड है वो बंजर नहीं होगा, I mean वो खराब नहीं होगा, ठीक है। तो ये हो गया, दिस इज ऑल अबाउट द फॉरेस्ट रिसोर्सेज, ठीक है। अब 1 मिनट आप लोग का कुछ क्वेश्चन आंसर देख लेता हूँ, फिर आगे चलते हैं। इसके बाद दूसरा है हमारा मिनरल रिसोर्सेज।
मानसी, ईवीएस की एक बुक है, इराक बरूचा की है, और बाकी आप एसओएल की वेबसाइट पे जाइएगा तो वहां पे कहीं ना कहीं एक बुक दिया हुआ है, ठीक है, कुछ पीडीएफ वगैरह दिया हुआ है एसओएल की वेबसाइट पे, तो वहां से आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो, क्योंकि जब आप लॉगिन करते हो तो थोड़ा सा आपको सर्च करना पड़ेगा। बाकी इराक बरूचा की एक बुक होती है, उसे आप पीडीएफ उसका गूगल पे अवेलेबल है, आपको सर्च करना पड़ेगा, ठीक है, वो मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है अग्रिम। एवरी चैप्टर इज इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम। आपका 7 चैप्टर्स है, 7 चैप्टर्स पूरा आपको कवर करना है। ये जो मैं अभी चैप्टर पढ़ा रहा हूँ ये चैप्टर 3 है आपका, ठीक है। इसके बाद 4 चैप्टर और हैं आपके, और जो 8वां चैप्टर है आपका फील्ड वर्क, वो नहीं हुआ ड्यू टू कोविड एंड ऑल, ठीक है। नहीं आदित्य, कोई भी ऑफिशियल ग्रुप नहीं है, मतलब ऐसा व्हाट्सएप या वो, मैं एक बार एडमिन को बोल दूंगा, एसओएल में जो एडमिन है उनको मैं बोल दूंगा, अगर वो फॉर्म करते हैं ग्रुप तो श्योर आपको जो है लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा। आपकी रिक्वेस्ट को मैं वहां पहुंचा दूंगा। हाँ, मैं रिन्यूएबल, दिव्या मैं फिर से शो कर देता हूँ आपको रिन्यूएबल रिसोर्सेज का पेज, ठीक है। आर्यन, आप जो है उसी इराक बरूचा की बुक देख लो, IRACH, इराक IRACH BHARUCH, इराक भरूचा बुक फॉर ईवीएस, ऐसे करके आप गूगल करोगे तो शायद आपको मिल जाए। हाँ, बुक के लिए मैंने बता दिया। बाकी आप जो है एसएल की वेबसाइट पे देखना, कहीं ना कहीं आपको बुक की एक पीडीएफ मिल जाएगी। नहीं, ग्रुप के लिए मैं बोल दूंगा, मैं रिक्वेस्ट कर लूंगा एडमिन से, अगर ग्रुप बनाते हैं ऐसा कुछ होता है। इंफॉर्मेशन जो आपको क्लासेस की मिल रही है वो आपको तो इसी वेबसाइट पे मिल रही है ना, एसओएल की वेबसाइट पे, आपको कहीं जाना ही नहीं है। आप वेबसाइट पे जाके देखो कि कब आपकी क्लास की आपकी क्लास कब शेड्यूल्ड है, ठीक है धनु, आप की क्लास कब शेड्यूल्ड है, आपको वेबसाइट से ही मिल जाएगा ना, एसओएल की वेबसाइट पे, आपको कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। नहीं, ठीक है, अब आपका कॉमन है। नहीं आदित्य, आप नहीं बना सकते हो, मैं बोल दूंगा उधर पे, आप आपके एडमिन को, जो एसएल के एडमिन है उनको मैं बोल दूंगा, अगर वो अलाउ करते हैं ऐसा करते हैं तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल भी जाएगी और लिंक भी प्रोवाइड हो जाएगा ग्रुप के लिए, ठीक है। ठीक है, मैं फिर से स्लाइड को शेयर करता हूँ। अब सेकंड जो हमारा है वो है वाटर रिसोर्सेज। आपको पता है कि वाटर रिसोर्सेज हमारे अर्थ पे सबसे ज्यादा है। 71% of the land is covered by the water resources, and rest of 29% is covered by the solid part of the earth crust. Okay, 71%, जिसमें हमारा अमाउंट कितना है ड्रिंकिंग वाटर का ये देखना है अभी, ठीक है। अब देखो, हाँ 67%, मैंने 71 बताया। देखो डाटा थोड़ा थोड़ा डिफरेंट होता है, आपको एग्जैक्ट अमाउंट इतना ही मिलेगा, क्योंकि रिसेंट जो रिसर्च हो रही है, अभी मैंने जो डाटा डाला है इसमें, वो जो रिसेंट रिसर्च के थ्रू का डाटा है उसको लिया गया है, तो कहीं आपको 67 मिलेगा, तो 67 से 71% के थ्रू आपको मिलता है टोटल, ठीक। 67 ऑफ द अर्थ सरफेस कवर्ड बाय वाटर, ओनली लेस देन 2.7% ऑफ द ग्लोबल वाटर इज फ्रेश वाटर। अब देखो फ्रेश वाटर की क्वांटिटी कितनी कम है। मोस्ट ऑफ द फ्रेश वाटर 2.05% आर लॉक्ड इन द आइस and glaciers. Only less than 0.7% is available for human use. So you can think about how much quantity of water is frequently available for our daily purposes and for our drinking needs. That is only 0.7% of the total water available on the earth. ठीक है, कुछ साल्टी वाटर है सी का, कुछ आइस कैप में लॉक है, ठीक है, जो कि अगर पिघल गया या मेल्ट हो गया तो फिर बहुत क्लाइमेटिक कंडीशंस चेंज हो जाएंगी, जो कि मैंने भी आपको बताया था, ठीक है। तो वाटर का बहुत लेस क्वांटिटी ऑफ वाटर इज अवेलेबल ऑन द अर्थ फॉर आवर ड्रिंकिंग एंड डेली पर्पजेज। ओके, सो व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स वी आर फेसिंग एंड वर्ल्ड इज फेसिंग ड्यू टू द ओवर यूटिलाइजेशन एंड पोल्यूशन ऑफ surface and groundwater. Okay, just see here in the slide, with the growth of the human population, there is an increasing need for larger amount of water to fulfill a variety of basic needs. Okay, as I told you earlier, population is increasing more and more day by day. Okay, as you know, China have made a policy, single child policy, but in India there is no proper rules and regulations, and there is a very urgent need for the population के लिए बहुत एक अर्जेंट नीड है, कोई रूल बनाया जाए। टुडे इन मेनी एरियाज दिस रिक्वायरमेंट कैन नॉट बी मेट। ओके, सो
Overutilization of water occurs at various levels. Most people use more water than really needed. You know, we basically use more water. If we are going for baths, if we are हम अपने गार्डन में यूज कर रहे हैं या हम बाथिंग के लिए यूज कर रहे हैं या किसी भी चीज के लिए यूज कर रहे हैं, तो यूज मोर वाटर देन रियली नीडेड. मोस्ट ऑफ अस वेस्ट वाटर ड्यूरिंग अ बाथ बाय यूजिंग शॉवर और ड्यूरिंग वॉशिंग अप. तो हमको यहाँ पे ध्यान रखना है कि इंडिविजुअल लेवल पे भी, अभी मैं लास्ट में स्लाइड के लास्ट में जो 5 मिनट होंगे उसमें बताऊंगा इंडिविजुअल लेवल पे हम कैसे कंजर्व कर सकते हैं इन सब चीजों को. ठीक है, तो एग्रीकल्चर आल्सो पोल्यूट सरफेस वाटर. कैसे एग्रीकल्चर पोल्यूट करता है? एग्रीकल्चर लैंड में फार्मर ने फर्टिलाइजर डाल दिया. कुछ फर्टिलाइजर some amount of fertilizer is absorbed by the plants, okay, but rest of the fertilizer which is not absorbed वो वहीं पे पड़ा रहता है, और जब सरफेस रन ऑफ वाटर आता है उसके थ्रू बह के वो कहाँ रिवर में चला जाता है, और वो रिवर में जाकर के उसके इकोसिस्टम को डिक्रीज करता है या सॉइल के इकोसिस्टम को डिक्रीज करता है या कंटेमिनेट करता है, एंड इट एसिलरेट्स द पोल्यूशन. ओके, पेस्टिसाइड्स का यूज, फर्टिलाइजर का यूज, ये सब भी बहुत ज्यादा ग्राउंड वाटर को पोल्यूट कर रहे हैं और हमारे सरफेस वाटर को पोल्यूट कर रहे हैं. इंडस्ट्री इज आल्सो अ बिगेस्ट सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन nowadays. Basically we depend on industrial स्टफ्स. जैसे हमको खाने के लिए कुछ भी चाहिए तो हमको क्या चाहिए? फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री से चाहिए. ठीक है, वाटर की बोतल भी आज पैकेट में होके आने लगी, या कुछ भी हमको चाहिए तो हमको इंडस्ट्री से चाहिए होता है. ठीक है, पेपर हमको चाहिए कहाँ से? वुड. ये पेपर की अगर हम बात कर रहे हैं कहाँ से चाहिए? जो हमारा इंडस्ट्री है, पेपर इंडस्ट्री है, वहां से चाहिए. तो वी आर बेसिकली डिपेंड ऑन द इंडस्ट्री एंड इंडस्ट्रीज आर आवर बेसिक नीड्स. हम उसको हटा ही नहीं सकते, बट हम वहाँ पे ये देख सकते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसे करें, सस्टेनेबल इंडस्ट्रीज को कैसे बनाएं. ठीक है, तो ये कुछ कॉन्सेप्ट है जो ग्राउंड वाटर या वाटर को पोल्यूट कर रहा है. ठीक है, फिर उसमें आता है वाटर के साथ साथ एक और आता है कि फ्लड क्या होता है. ठीक है, फ्लड भी वाटर से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है. फ्लड क्या है? फ्लड हैव बीन अ सीरियस एनवायरमेंटल हैजार्ड फ्रॉम कंट्री. अगर हम फॉरेस्ट को कट कर देंगे तो फ्लड आ जाएगा. कट करेंगे तो क्या होगा कि सॉइल की जो बाइंडिंग कैपेसिटी है रूट्स की वो डिक्रीज हो जाएगी. डिफोरेस्टेशन का फ्लड दैट किल्स पीपल, डैमेज क्रॉप्स एंड डिस्ट्रॉय होम्स. रिवर चेंजेस इट्स कोर्स ड्यूरिंग फ्लड एंड टन्स ऑफ वैल्यूएबल सॉइल इज लॉस्ट टू द सी. अभी हुआ था ना कुछ दिन पहले, जब बारिश का टाइम था तो गंगा प्लेन में बहुत ज्यादा फ्लड आया था. As the forest area degraded, rainwater no longer percolates slowly into the subsoil, but runs off down the mountainside, bearing large amount of topsoil. Okay? फिर ड्रॉट के बारे में हम बाद में बात करेंगे. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन एंड वाटर रिसोर्सेस. ठीक है, अब यहाँ पे देखो प्रोजेक्टेड वाटर स्कैर्सिटी इन 2025 क्या होगा. ये मैंने एक स्लाइड लिया है इंटरनेशनल वाटर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट का. इसमें आप देख सकते हो ये जो रेड एरिया है उसमें इंडिया का भी बहुत ज्यादा पार्ट है. जस्ट सी द कर्सर में आप इंडिया देख सकते हो कि ये फिजिकली वाटर स्कैर्सिटी को शो कर रहा है. 2025 में क्या प्रॉब्लम आ जाएगी वर्ल्ड के ऊपर पानी को लेकर के. ठीक है, फिर हाउ टू मैनेज द वाटर. Okay, the phenomena is called as a water management. Okay, building several small reservoirs instead of few mega projects, development few catchment dams, afforestation permit. Afforestation is very important, and afforestation permits recharging of the underground water due to its soil binding capacity. Soil binding capacity roots के थ्रू होगा. पानी बारिश हुई तो पानी में रुक गया, फिर वो रिचार्ज करेगा अंडरग्राउंड को. ट्रीटमेंट एंड रिसाइकलिंग म्युनिसिपल वेस्ट वाटर फॉर द एग्रीकल्चरल यूज. एज यू आर लिटिल बिट अवेयर अबाउट दिस कि all the cities in India have STP and ETP, sewage treatment plant and effluent treatment plant. You can see ETP frequently in Delhi. Okay, the concept of ETP and STP is to collect the water from all the sources of the city and to treat them for the use in agricultural purposes. Okay, preventing leakage from dam and canals, preventing loss in municipal pipes, effective rainwater harvesting in the urban environment. Rainwater harvesting and roof water rainwater harvesting is a very new concept and very emerging concept in present scenario, and it helps a lot in water management. Okay, in the Rajasthan area, most of the people are using this kind of water harvesting technique because the water scarcity is
found there, and वहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा कम होती है, so they are using continuously for this kind of water management. Pricing of the water, as we know कि अगर हम बोतल भी लेने जाते हैं तो हमको 20 रुपीज़ 15 रुपीज़ का मिल जाता है, बट गवर्नमेंट को कुछ ऐसा पॉलिसी बनाना चाहिए कि वो थोड़ा सा और कॉस्टली करे, एज फॉर माई ओपिनियन. ओके, तो होता क्या है कि जब कोई चीज़ कॉस्टली होती है तो लोग उसकी वैल्यू समझते हैं, तो उससे क्या होगा, क्योंकि हमारे पास केवल 0.7% ऑफ द फ्रेश वाटर इज अवेलेबल फॉर अवर ड्रिंकिंग पर्पज, ठीक है. तो दिस इज ऑल अबाउट द वाटर मैनेजमेंट. अब यहाँ पे एक और चीज मैं बता देना चाहता हूँ, ड्रॉट, सूखा. दिस इज आल्सो रिलेटेड टू द वाटर. वाटर नहीं जहाँ पे होगा, in most of the arid regions of the world, rains are unpredictable. This leads, क्या lead करेगा, to a period when there is a serious scarcity of water to drink, use in forms are provided for urban or industrial use. Is it clear? One of the factors that worsens the effect of drought is deforestation, and deforestation is the main cause of the drought. Okay, and drought is one of the major problem in our country due to the unpredictable climatic condition, because climatic condition is always unpredictable. Yes, there are some meteorological department in all over the world who are working for the prediction of the climate change, but still the climate is little bit unpredictable are due to the failure of one and more monsoon. जैसे एक मानसून नहीं आया तो वहां पे भी ड्रॉट हो गया, ठीक है. तो यू जस्ट नो अबाउट द ड्रॉट. ड्रॉट होता क्या है, ठीक है, कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए एज पर योर सिलेबस. फिर आता है हमारा मिनरल रिसोर्सेज, ठीक है. यू कैन सी द मिनरल रिसोर्सेज. यहाँ पे डिगिंग माइनिंग हो रही है, डायमंड्स होते हैं, स्टोन्स होते हैं, गोल्ड होता है, आयरन होता है, मैग्नीशियम होता है, ठीक है. हमारा फूडिंग पर्पज में भी मिनरल रिसोर्स यूज होता है, और हमारे डेली यूज में भी मिनरल रिसोर्सेज का यूज होता रहता है. सो जस्ट सी हियर अबाउट द मिनरल रिसोर्सेज. व्हाट आर द मिनरल रिसोर्सेज? अ मिनरल इज नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस ऑफ डिफाइनाइट केमिकल कंपोजिशन एंड identifiable physical properties. Okay, and mineral are formed over a period of millions of years in the earth crust. Okay, so formation of mineral requires a long span of time, okay, in the environment. Some examples are iron, aluminum, zinc, manganese, and copper, etc., etc. And there are two kinds of mineral resources available. The student who are writing and maintaining their notes, you just write, one is metallic and another is non-metallic. Two kinds of mineral resources. One is metallic and another is non-metallic. This is not written in the slide. Kindly note down metallic and non-metallic. Okay. Okay, just go ahead. Then stone used for building materials such as granite, marble, limestone constitute another category of the minerals. As you know, like our Taj Mahal is also made up of granite and so many marble and limestone. Okay, minerals with special properties that humans value, such as diamonds, beware diamonds, gold, silver, ruby, platinum, etc., etc. ठीक है. Mineral is the form of the oil, gas, and coal were formed when the ancient plants and animals are converted into underground fossil fuel. Okay. अब जो हमारा फॉसिल फ्यूल का फॉर्मेशन होता है, जो मैंने बताया था आपको अभी, जो कि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, मिनरल इज आल्सो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है. अगर हमको रिन्यूएबल की कैटेगरी में तभी डालते हैं जब वो शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में रिन्यू हो जाता है. एनी काइंड ऑफ रिसोर्स which takes a long span of time for the regeneration is called as a non-renewable resource, क्योंकि बहुत टाइम लगता है उसको बनने में. And we cannot easily generate this. We cannot make fossil fuel in a short span of time. हम पेट्रोल और डीजल को नहीं जनरेट कर सकते, ठीक है, क्योंकि एक नेचुरल प्रोसेस के थ्रू हुआ है. तो मिनरल्स इन द फॉर्म ऑफ द ऑयल, गैस एंड कोल वे फॉर्म व्हेन द एंशिएंट प्लांट्स एंड एनिमल्स वे कन्वर्टेड इनटू अंडरग्राउंड फॉसिल फ्यूल. ठीक है. ओके, अब देखो यहाँ पे माइनिंग होता है. माइनिंग यू नो कि एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स है, मिनरल्स को निकाला जाता है. और माइनिंग भी दो टाइप का होता है, डीप एंड सैफ्ट माइंस. यू कैन सी हियर there are two kind of mining activities. One is surface mining and second is underground mining. Mining from the top of the soil is called as a surface mining. कोल का होता है मैक्सिमम. अंडरग्राउंड माइनिंग जो बहुत अंदर जाना होता है, फिर डायमंड का हो गया, फॉसिल फ्यूल का हो गया, तो ये सब हमारा अंडरग्राउंड माइनिंग में आता है. और माइनिंग से बहुत ऑक्यूपेशनल हजार्ड जनरेट होता है.
ठीक है, क्योंकि वहां पे बसना पड़ता है, एक्सप्लोर कराना पड़ता है, उससे जो रेडिएशन निकलती है, जैसे यूरेनियम माइनिंग की हम बात करेंगे, यूरेनियम में क्या होता है, रेडिएशन निकलती है, एंड दैट काइंड ऑफ रेडिएशन इज वेरी हार्मफुल फॉर एनी काइंड ऑफ एनिमल. ओके, the rays are X-ray, alpha, beta, gamma. 3 kinds of rays are emitted from the uranium. किसी भी अगर हम न्यूक्लियर माइनिंग की बात करते हैं तो ठीक है. चलो, फूड के बारे में हमको नहीं जानना है, अब हमको जानना है एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में. ठीक है, एनर्जी रिसोर्सेज में मैंने आपको बताया कौन कौन से रिसोर्सेज होते हैं. 2 टाइप के रिसोर्सेज होते हैं, रिन्यूएबल रिसोर्सेज और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, जो कि मैंने पहले आपको आई टोल्ड यू अर्लियर अबाउट ऑल द थिंग्स. एंड देयर आर 2 काइंड ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज, वन इज रिन्यूएबल, सेकंड इज नॉन रिन्यूएबल, और मैंने इसका बेसिक डिफरेंस आपको बता दिया है. ठीक है, अब हमारा आता है लैंड रिसोर्सेज. लैंड रिसोर्सेज क्या है? ठीक है, some important land resources are listed here. You know, around 29% of our earth is covered by the solid part of the earth crust. Okay, so हमारा land resources होगा hills, valleys, plains, river basins, wetlands, etc. ये सब है. Okay, so land resources, man needs land for building homes, cultivating foods, developing industries, for providing goods and for creating towns and cities. जो हमारा लैंड रिसोर्सेज है वही हमारा लिथोस्फीयर है. लिथोस्फीयर आपने पढ़ा होगा फर्स्ट क्लास में, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर के बारे में. तो उसमें जो लिथोस्फीयर होता है वो हमारा लैंड रिसोर्सेज है. उसके ऊपर का जो अर्थ क्रस्ट वाला पार्ट है, आपने फर्स्ट यूनिट में पढ़ा होगा, वो हमारा लैंड रिसोर्सेज में आता है. Thus, a rational use of land needs careful planning. One can develop most of the different types of land use almost anywhere. Okay, ठीक है. If land is utilized properly, it can be considered as a renewable resource. You know, अगर हम कुछ भी लैंड में डालते हैं तो वो क्या करता है, ग्रो करता है. wheat, rice, barley, any kind of forest, any kind of मैंगो का आप सीड उसमें डाल दो, आज पे डाल दो, बारिश के टाइम पे मैंगो का ट्री निकल आता है, मतलब प्लांट निकल आता है. तो इट कैन बी कंसीडर्ड एज अ रिन्यूएबल रिसोर्सेज इफ यूटिलाइज्ड प्रॉपर्ली. Okay, land is also converted into non-renewable resources when highly toxic in the sea. You know, हिरोशिमा नागासाकी पे जो बम्बार्डमेंट हुआ था, अभी भी वहां के लैंड में इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो फिर से रीजनरेट कर सके, या फिर से वहां पे जो एग्रीकल्चर है वो अभी भी बंद पड़ा हुआ है या बहुत कम लेवल पे होता है. तो दैट लैंड इज एक्ट एज अ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स. यू कैन थिंक, जहाँ पे यूरेनियम का, जहाँ पे न्यूक्लियर एनर्जी की हम बात करेंगे, वो लैंड हमारा खत्म हो चुका होता है. ठीक है, तो उस लैंड में फिर से हमको रिजनरेट कराना है, अदरवाइज उसको हम नॉन रिन्यूएबल कैटेगरी में डालेंगे. बट जो लैंड हमारा है वो रिन्यूएबल रिसोर्सेज की कैटेगरी में आता है. काइंडली कंसीडर एंड रिमेंबर दिस पॉइंट. फिर टाइम. ओके, लैंड डिग्रेडेशन कैसे होता है? Just see about the land degradation. ठीक है, farmland is used trade due to more and more intensive utilization. ठीक है, सबसे पहला हमारा पॉपुलेशन बढ़ गया, पॉपुलेशन बढ़ा तो we need more land for our daily purposes. Then the use of more and more बढ़ता जाएगा तो हमको क्या होगा, हमको फूडिंग के लिए ज्यादा से ज्यादा चाहिए. फूडिंग के लिए हम क्या करेंगे, फूड प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए हमने क्या किया, फर्टिलाइजर का यूज किया. फार्मर्स ने क्या किया, केमिकल फर्टिलाइजर्स का ज्यादा से ज्यादा यूज कर लिया, और ज्यादा से यूज किया तो सारा का सारा तो फर्टिलाइजर एब्जॉर्ब होगा नहीं प्लांट में, जो एक्सेस में बचा रहता है दैट एक्सेलरेट लैंड डिग्रेडेशन. Okay, the use of more and more chemical fertilizers poisons to the soil, so that eventually the land becomes unproductive. Okay, as urban centers grow and industrial expansion occurs, the agricultural land and forest sinks. Okay, this is serious loss and long-term ill effect of the human civilization. Soil erosion is also considered as one kind of land degradation. Soil erosion जो होता है वो भी तो हमारा है. अगर डिफॉरेस्टेशन हो गया तो सॉइल डिग्रेडेशन बढ़ जाता है, तो सॉइल इरोजन भी बढ़ जाता है. ओके, सो दिस इज अबाउट द लैंड डिग्रेडेशन. ओके, अब ये आपका हो गया रिसोर्सेज के बारे में, जिसमें मैंने फॉरेस्ट रिसोर्सेज बताया, वाटर रिसोर्सेज बताया, लैंड रिसोर्सेज बताया, एनर्जी रिसोर्सेज बताया, मिनरल रिसोर्सेज बताया. इसके बाद एक और रिसोर्सेज आता है, उसकी स्लाइड में ही मैं आपको जस्ट डिस्क्राइब कर रहा हूँ. अनदर रिसोर्सेज इज आवर न्यूक्लियर रिसोर्स. दिस इज आल्सो कॉल्ड एज ए alternative source of energy. Okay,
तो न्यूक्लियर रिसोर्सेज कैसे बनते हैं? देयर आर टू काइंड ऑफ प्रोसेसेस, वन इज न्यूक्लियर फिजन, सेकेंड इज न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फिजन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन, ठीक है। इसमें क्या होता है कि अगर स्मॉल अमाउंट ऑफ हम यूरेनियम, थोरियम, प्लूटोनियम, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस लेते हैं तो वहां पे एक चेन रिएक्शन होता है, अगर हम उसको एक्सप्लोड कराते हैं और वो चेन रिएक्शन से जो लार्ज अमाउंट ऑफ क्वांटिटी ऑफ एनर्जी निकलती है, दैट quantity of energy can be stored and can be used for our multiple purposes in our daily life। जैसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन पहले कोल से किया जाता था सबसे ज्यादा, अभी कोल के बाद आ रहा है कॉन्सेप्ट हाइड्रो पावर का, हाइड्रो पावर के बाद अब कॉन्सेप्ट आ रहा है अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी, हमारा न्यूक्लियर पावर है, न्यूक्लियर पावर इन फ्यूचर जनरेशन। इन इंडिया देयर आर सो मेनी न्यूक्लियर प्लांट्स एस्टेब्लिश्ड, जैसे कल्पगम है और एक तो आप गूगल पे देखोगे बहुत सारे न्यूक्लियर प्लांट्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो यू जस्ट हैव लिटिल बिट आइडिया अबाउट दिस। अब हमारा इंडिविजुअल लेवल पे रोल क्या है फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है। अब पहला मैंने क्या बताया था? पहला मैंने बताया था फॉरेस्ट रिसोर्स, ठीक है। फॉरेस्ट रिसोर्स देखो कैसे करना है इंडिविजुअल लेवल पे, ठीक है। मेंटेनिंग लॉन एंड गार्डन यू कैन डू एनी टाइम एनीवेयर इन योर होम, पार्टिसिपेटिंग इन कम्युनिटी प्लांटेशन प्रोग्राम, नॉट अपरूटिंग द एग्जिस्टिंग ट्रीज, ओके, ये सब कर सकते हो। इनकरेज मास स्केल की प्लांटेशन, और 21 मार्च को फॉरेस्ट डे मनाया जाता है, लिख नोट डाउन कर लो। फॉरेस्ट रिसोर्सेज में अगर नोट डाउन कर लो तो नोट डाउन कर लो 21 मार्च को, तो हम बहुत सी चीजें ऐसे फॉरेस्ट को कंजर्व करने के लिए कर सकते हैं। अब फॉरेस्ट के बाद दूसरा हमारा वाटर इकोनॉमी, हाउ टू कंजर्व द वाटर एंड वाटर मैनेजमेंट, ठीक है। नॉट कीपिंग वाटर टैप्स रनिंग, हम टैप को बंद करके रखना है। चेक वाटर लीक एंड रिपेयर, ओके। रूफ वाटर, रेन वाटर हार्वेस्टिंग को इंक्रीज करना है। इंस्टॉलिंग वाटर सेविंग टॉयलेट्स दैट यूज ऑप्टिमम water per flush, okay. Collect wastewater in your home and use it for watering kitchen, garden, etc, okay. And March 22 is celebrated every year as a World Water Day, okay. Save wetland, lakes, pond, wells, etc, okay. This is our individual approach for conservation of our natural resources. Third approach for the conservation of minerals, okay. Minimize the use of the minerals which are likely to be depleted or exhausted। ऐसा रिसोर्स जो बहुत ज्यादा यूज हो रहा है, डिप्लीट हो सकता है, उसको मिनिमाइज यूज करो। मिनिमाइज यूज ऑफ ज्वेलरी टू कंजर्व स्केयर मिनरल्स, ज्वेलरी भी तो हम पहनते हैं, वो भी कहीं ना कहीं मिनरल है, गोल्ड, प्लेटिनम, सिल्वर, डायमंड, ओके। रिसाइकिल एंड रीयूज मिनरल्स एंड ग्लासेस, हम जैसे शीशे की ग्लास का यूज करते हैं, इफ वी आर यूजिंग ग्लास मेड ऑफ शीशे का बना हुआ है, कांच का बना हुआ है, तो उसको हम फिर से रिसाइकिल करके फिर से यूज करें। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द रिसाइकिल, यूज एंड रिप्रोड्यूस, ऐसा करके है ना। बाय ड्यूरेबल प्रोडक्ट दैट लास्ट लॉन्ग, बाय एफिशिएंट व्हीकल, ठीक है। यूज रिसाइकेबल यूटेंसिल्स, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा इंडिविजुअल रोल इन एनर्जी कंजर्वेशन एंड सेविंग एनर्जी, ये हमारा मेन पॉइंट है। Kindly focus on this slide. Turning off lights, fans or other electric appliances where not in use, okay. You know कि every year one day यूएन की तरफ से कुछ आता है कि पूरे वर्ल्ड का लाइट ऑफ किया जाएगा, उस दिन पूरा का पूरा लाइट ऑफ कर दिया जाता है। कंस्ट्रक्ट बिल्डिंग इन सच अ वे दैट मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सनलाइट कैन बी ऑब्टेन। ट्राई टू ड्राई क्लॉथ्स इन सनलाइट। यूजिंग सोलर कुकर्स फॉर कुकिंग फूड। बाइंग एनर्जी इफिशिएंट अप्लायंसेस। मिनिमाइज यूज ऑफ ऑटोमोबाइल बाय यूजिंग बाइसिकल्स, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, कारपूलिंग एक्सेट्रा। इन हम अपना खुद का बाइक की जगह अगर हम वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करते हैं तो भी हम बहुत एनर्जी को सेव कर सकते हैं, ठीक है। ट्राइंग टू रिसाइड नियर अ प्लेस ऑफ वर्क इफ पॉसिबल, ठीक है। ऐसा कुछ छोटी छोटी चीजें हैं। आप जो दिसंबर 14 है जो वर्ल्ड वाटर कंजर्वेशन डे, वर्ल्ड एनर्जी कंजर्वेशन डे की तरह मनाया जाता है। सॉरी, वाटर बोल दिया मैंने। दिसंबर 14 इज सेलिब्रेटेड एज अ वर्ल्ड एनर्जी कंजर्वेशन डे, ये भी आप नोट डाउन कर लो, ठीक है। इसके बाद जो लास्ट में है कि इंडिविजुअल रोल इन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर एंड सॉइल प्रोटेक्शन, ठीक है। रिड्यूसिंग यूज ऑफ केमिकल्स एज फर्टिलाइजर, वी कैन रिड्यूस आवर फर्टिलाइजर बाय यूजिंग बायो फर्टिलाइजर्स, ठीक है। यूजिंग बायो फर्टिलाइजर, जो नेक्स्ट लाइन है। यूजिंग बायोलॉजिकल कंट्रोल्स मेजर फॉर पेस्ट कंट्रोल, केमिकल्स हमको कम से कम यूज करना है। अवॉइड ओवर इरिगेशन, वी कैन यूज स्प्रिंकलर का हम यूज कर सकते हैं इरिगेशन को, जो हमारा ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस है उसको अवॉइड करके। डिस्करेज मोनोकल्चर
practices in agriculture, adopting mixed cropping. Mixed cropping में क्या होता है, अभी मैंने बताया ना, एग्रोफॉरेस्ट्री विद द एग्रोफॉरेस्ट्री का जो कॉन्सेप्ट है, एग्रीकल्चर को भी यूज करना है, फॉरेस्ट को भी यूज करना है. अडॉप्टिंग ड्रिप इरिगेशन, दिसंबर 23 को वर्ल्ड फार्मर्स डे मनाया जाता है, और दिसंबर 17 को observing June 17 as a day to combat desertification of the desert area. Okay, so this is all about your mineral resources. इसमें मैंने आपको फॉरेस्ट बताया, वाटर बताया, लैंड बताया, मिनरल रिसोर्स बताया, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल के बीच में डिफरेंस बताया, न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में डिस्कशन हुआ, और इंडिविजुअल रोल क्या है उसको कंजर्व करने के लिए. ओके, so this is all about your today's class. अब आप लोगों का देख लेते हैं कुछ क्वेश्चन आंसर होता है तो. Sir, my English subject and second sem, so that time the classes will again online conduct, or we have to. मोहम्मद अमनुल्लाह, आपका जो क्वेश्चन है ना, सॉरी मैं इसका आंसर नहीं दे पाऊंगा, ये एडमिन से ही आपको पता चल पाएगा या एसओएल से ही आपको पता चल पाएगा. हाँ दिव्या, दो टाइप का माइनिंग होता है, दो टाइप का माइनिंग है, एक है सरफेस और एक है सब सरफेस माइनिंग. सरफेस मतलब जैसे हमको कोल लेना है तो हमको वो सरफेस से मिल जाता है, और जब हम सब सरफेस की माइनिंग की बात करते हैं तो वो हमको डीप माइनिंग करके डायमंड की माइनिंग है या फॉसिल फ्यूल की माइनिंग है. जैसे हमको पेट्रोल निकालना है, डीजल निकालना है, पेट्रोल निकालना है, डीजल निकालना है, तो अंदर जाके हमको लेना पड़ता है. कुछ ओट्स होते हैं जो हमको बाहर ही मिल जाते हैं, मतलब सरफेस पे ही मिल जाते हैं, तो वो सरफेस माइनिंग हो गया. जो हमको डीजल और पेट्रोल लेना है वो हमको सब सरफेस अंदर से निकालना पड़ेगा. ठीक है, एग्जाम का मोड ऋतिक मैं आपको एग्जैक्टली नहीं बता पाऊंगा, वो आपको इंफॉर्मेशन आ जाएगी जिस मोड में होगा. अगर कोविड चलता रहा तो मे भी ऑनलाइन होना चाहिए. दृष्टि, आपने एडमिशन लिया है, आपको सिलेबस तो मिल ही गया होगा, और अगर आपको सिलेबस नहीं मिला है तो आप एसओएल की वेबसाइट पे देखो, एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन देयर. ठीक है, सिलेबस भी है वहां पे कहीं पे. ठीक है, एसओएल की वेबसाइट पे आप गो थ्रू करो, उसमें कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा, नहीं तो गूगल पे भी आप सर्च कर सकते हो कि सिलेबस फॉर ईवीएस अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज दिल्ली यूनिवर्सिटी. सिलेबस आई होप सबका सेम ही होता है. ठीक है, अंशी का कोई ग्रुप नहीं बना है तो मैं एडमिन तक आपकी बात पहुंचा दूंगा, और अगर ग्रुप बनाया जाता है तो श्योर. ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंडेंट है, मीडियम डजंट मैटर मोर. सपना, आपका जो प्रॉब्लम है, देखो मेरे को तो यही क्लास अलॉट है और क्लास का आपको टाइमिंग भी दिखाते हैं यहाँ पे. सो काइंडली आप ऐसा नहीं है, एसओएल की जितनी भी क्लासेस हैं वेल मैनेज्ड हैं वो. ठीक है, बुक का नेम है इराक बरूचा. इराक बरूचा बुक का नेम है. इराक बरूचा राइटर का नेम है, बुक का नाम है इन्वायरमेंटल साइंस फॉर अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स. मोड का देखिए, अभी तक तो आपका मोड जो है अगर कोविड रहा तो ऑनलाइन ही होगा. ठीक है, और कुछ, और कोई इंपॉर्टेंट एग्जाम से रिलेटेड बहुत सारी क्वेरीज हैं. ये आपका जो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम है ना, एक्चुअली वी आर टीचर्स सो वी आर नॉट एबल टू आंसर एवरीथिंग, तो आपको थोड़ा सा वेबसाइट वगैरह पे आप चेक करते रहो. ठीक है, वो आपको बताया जाएगा. हाँ, आपको मटेरियल सेंड करने के लिए देखिए, एक तो आप एसओएल की साइट पे देख लो, आपको मिल जाएगा. अगर ऐसा कुछ होता है, आपको मटेरियल सेंड किया जाता है तो श्योर आपको मेल के थ्रू या आपको ग्रुप अगर बनाया जाता है कुछ, तो वो आपको बता दिया जाएगा. एनोनिमस, अगर आपका ऐसा है जो आप क्वेश्चन कर रहे हो बोथ सेमेस्टर वाला, तो वो आपको एडमिन से ही करना पड़ेगा. आप उनसे डायरेक्टली बात करो, वही आपको बता पाएंगे कि क्या प्रॉब्लम है. इसके लिए मैं आपकी सॉरी कोई हेल्प नहीं कर सकता. हाँ, न्यूक्लियर रिसोर्सेज के बारे में जो आप पूछ रहे हो, न्यूक्लियर रिसोर्सेज आपका न्यूक्लियर एनर्जी से जो एनर्जी हम जनरेट करते हैं वो हमारा न्यूक्लियर रिसोर्सेज में आता है. ठीक है, ठीक है, ओके, ठीक है. सो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू. मैं भी क्लास को क्लोज करता हूँ. आपकी जो कुछ क्वेरीज हैं ग्रुप बनाने को लेकर के या ऐसा, आई होप आज आपका क्लास 3 to 4 ही है. ओके, सो नाउ इज 4 o'clock.
Okay. Okay, thanks to all of you. We will meet in the next class. जैसे भी शेड्यूल बनता है या टाइम टेबल होता है, आप लोग अपने टाइम टेबल को देख सकते हैं उस पे वेबसाइट पे. थैंक यू. हाँ सर, एंड कर दें सर? हाँ सर, हेलो, एंड कर दीजिए. ओके सर, ओके, ठीक है. थैंक यू.